شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم حضرات، حاضرین جمعہ، رب کریم کے حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بزرگی کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. حضرات، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جو عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ در حقیقت جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ لیکن پوری طریقے سے داخل ہو. اسلام کے اندر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے کہ راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان، ایسا بھی داخل نہیں ہونا ہے. تو اسلام کے اندر تم پورے کے پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو، اپنے بیوی بچوں کو سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اگر اس کے جیتی جاگتی کوئی تصویر ہے تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہے کہ انہوں نے کس قدر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی. آج ہماری محبت کس طریقے سے ہے؟ آج ایک معمولی مثال دیکھ لیجئے. ہم جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں جو ایک نوافل نماز ہے. فجر کی نماز ہم کہاں پڑھے بتاؤ؟ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہہ دے کہ میں فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے مسجد میں پھر میں جمعے کی نماز پڑھنے آ جایا ہوں؟ کیوں؟ ہم تو مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن فجر کی نماز کہاں گئی؟ تو اسی طریقے سے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو پوری طریقے سے داخل ہو، آدھے طریقے سے نہیں. اور نہ مرو، جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے تو تمہیں پورے کے پورے طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہیے اور تمہیں دخول پائے اسلام کے اندر. کل دیکھیے مسلمان کس قدر مسلمان عبادتیں کر رہے ہیں. کیا اس چیز کی جو قرآن اور حدیث کے اندر کیا اس چیز کا حکم موجود ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اپنے امت کو چپل پہننے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بیت الخلا میں جانے کے طریقہ بتا رہے ہیں. یہاں تک کہ انسان سو رہا ہے تو کون سی دعا پڑھ کر سوئے، کون سے کروٹ سے سوئے.
यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीजें अपने उम्मत को बता दी है। और अगर ये इतनी बड़ी रात होती, इतनी बड़ी फजीलत की बात होती, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नहीं कहते, उम्महातुल मोमिनीन को नहीं कहते? हदीसों में आता उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ा फरमाते कि मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, जितना ये साबान के महीने में आप रोजों का एहतमाम करते हैं, इबादतों का एहतमाम करते हैं, अल्लाह के रसूल अगले और पिछले महीनों में हमने आपको इतनी इबादत करते हुए नहीं देखा। या तो आप रमजान में अल्लाह की इतना इबादत करते हैं, और आप जितना साबान के महीने में नवाफिल का एहतमाम करते हैं, नवाफिल रोजों का, अल्लाह के रसूल इतना हमने पिछले महीनों में नहीं देखा। अल्लाह के नबी कहते हैं उसामा, ये इसी महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ लोगों के आमाल को पेश किया जाता है, और इसलिए मैं रोजे से रहता हूं कि जब मेरा नाम आमाल रब्बुल आलमीन के बारगाह में पेश हो तो उस दिन में रोजे से रहो। हमने आज खास 15वीं साबान को ही मुतय्यन करके रख लिए। रसूल ज्यादा जानते हैं कि हम ज्यादा जानते हैं? उमा ताकुमुर रसूल फकुज़ूहु, कि मेरा अल्लाह कहता मेरा रसूल जो दे वो तुम ले लो, और जिन कामों से रोके उससे रुक जाना, यह भी सुन्नत की दलील होती है। मसलन एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आया, फजर के नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और कहा, इधर आओ, फजर की नमाज तो सिर्फ 2 रकात है जो तुम मेरे पीछे पढ़ चुके हो, ये तुमने बाद में कौन सी सुन्नत 2 रकात पढ़ी है? कहा अल्लाह के रसूल, जब मैं मस्जिद में आया तो जमात खड़ी थी, अल्लाह के रसूल में जमात में शामिल हो गया, और अल्लाह के रसूल फजर से पहले जो 2 रकात सुन्नत होती है, अल्लाह के रसूल वो मुझसे छूट गई थी। हदीस के अल्फाज है, फसदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो जो चीज रसूल दे उसका लेना सुन्नत है, और जिन कामों से रोके उससे रुक जाना भी सुन्नत कहलाती है। हदीसों में आता है कि ये जो 15वीं साबान की जो फजीलतें गहकर बयान किया गया है, ये कुरान और हदीस में नहीं है। जामे तिर्मिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रात में एक मर्तबा उठी तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए दुआ करने गए। सिर्फ उसका नाम बकी है, जन्नतुल बकी है, कुरान और हदीस में नहीं आया है। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा भी पीछे पीछे गई। देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर आ रहे थे, तो कहा अल्लाह के रसूल आप कहां गए थे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा तुम क्या समझते हो कि अल्लाह के रसूल जो है वो ना इंसाफी करेंगे अपने बीवियों के दरमियान? कहती अल्लाह के रसूल मैं ये सोच रही थी, हो सकता आप अपने कोई दूसरी बीवी के यहाँ चले गए होंगे, इसीलिए मैं सोची कि देखूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा मुझे जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल जाओ कब्रिस्तान के अंदर उनके बारे में दुआ करो। सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह के रसूल गए। अच्छा, इसके जो फजाइल में बात गढ़ी जाती है कि उस दिन 100 रकात नमाज पढ़ो और एक रकात में कम से कम 10 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ो, इतनी फजीलत है। और जो इंसान ये नमाज पढ़कर दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दुआ को रद्द नहीं करेगा। लेकिन अगर इतनी फजीलत की बात होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी को जगाते, यहां तक कि अशरे मुबस्सरा को बताते, फारूक आजम को बताते, सिद्दीक अकबर को बताते। लेकिन हदीस में कहीं नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबा को इसके फजीलत में बयान किया हो कि मेरे सहाबा इतनी नमाज पढ़ो, इतनी रोजा रखो, इतना हज करो, इतना अल्लाह नवाफिल का एहतमाम करो। कहीं पर एक भी हदीस, सही हदीस इससे साबित नहीं है कि वो अबू बकर सिद्दीक है कि जुबान रिसालत ने जिन्हें कहा कि अबू बकर सिद्दीक तुम्हारी इतनी नेकियां है, इतनी नेकियां है, तुमने इतना इस्लाम के ऊपर एहसान किया है और इतनी तुम्हारी नेकियां हैं कि
कि तुम्हारे नेकियों को गिनी नहीं जा सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने इस्लाम के ऊपर जो एहसानात किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने हाथों से अदा करेगा। और वो हजरत उमर फारूक है कि जिनको जुबान रिसालत ने कहा कि उमर तुम्हारी इतनी नेकियां हैं कि 7 आसमान के सितारे गिन सकते हैं, लेकिन फारूक आजम की नेकियां नहीं गिनी जा सकती है। अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। अल्लाह के नबी पूछते हैं, बीबी क्या बात है? कहा कि तुम रो क्यों रही हो? कहा अल्लाह के रसूल, आपने फारूक आजम के नेकियों के बारे में कहा कि उनकी इतनी नेकियां हैं कि 7 आसमान के सितारे गिन सकते हैं, लेकिन उमर की नेकियां नहीं गिनी जा सकती। अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बू आपके साथ उठते, आपके साथ बैठते, आपके साथ खाते, आपके साथ पीते, यहां तक कि नमाज आपके साथ पढ़ते। क्या बात है, आप हमारे अब्बू के नेकियों का तस्करा नहीं किए? कहा बीबी, तुम अबू बकर सिद्दीक के नेकियों को जानना चाहती कितना है? उमर के सारे जिंदगी की नेकी तराजू को एक साइड रख दिया जाए और अबू बकर सिद्दीक की एक दिन की नेकी तराजू को एक साइड रख दिया जाए, फिर भी उमर का नेकी अबू बकर सिद्दीक के नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इतने जलीलुल कदर सहाबा मौजूद हैं। यहां तक कि मस्जिद नबी की जब तामीर हुई और तामीर होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में नमाज पढ़ाए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए उसमें। लेकिन 15वीं तारीख तो आई होगी ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक भी सही हदीस साबित नहीं है। यहां तक कि अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे भी एक भी हदीस साबित नहीं है कि ऐसा अब असरे मुबस्सरा है, लेकिन इनसे भी कोई हदीस साबित नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर रात में उठकर न जाती तो ना पता चलता। तो ये सब जो वाकया गढ़ी गई है, ये सब सिर्फ पेट भरने के लिए गढ़ी गई है। नहीं तो कुरान और हदीस में देखिए, कुरान हदीस में ईद और बकरीद इनके बारे में कोई इख्तिलाफ है? हर उम्मत का इज्मा है इसके अंदर। लेकिन अगर ये त्योहार होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अपने उम्मत को बताते। कि यहां तक कि जो नबी अपने उम्मत को चप्पल पहनने का तरीका बता रहे हैं, यहां तक कि खाना खाने का तरीका बता रहे हैं, वुजू करने का, नमाज का, हर चीज का तरीका नबी अकरम बता कर गए हैं। और ये इतनी बड़ी इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह भूल जाते। तो इस्लाम में अगर इंसान दाखिल होना चाहता है तो पूरी तरीके से दाखिल हो। ये इस्लाम के अंदर आधा तीतर आधा बटे नहीं है। हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, कहती है अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बीबी जाओ तुम गुस्ल कर लो। कहा अल्लाह के रसूल वो पाक नहीं कह रहे, मुझसे जिना का सुतूर हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके बाद को टाल रहे हैं, फिर भी वो औरत कहती है अल्लाह के रसूल इसका सबूत मेरे पेट में पल रहा है बच्चा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये बीबी जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब आना। बहरहाल वो औरत जाती है, उसे कोई पुलिस के हवाले नहीं किए, कहीं जेल में नहीं डाला, सिर्फ खसीत इलाही के बिना पे वो आई। बहरहाल वो औरत जाती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब आती है, कहती है अल्लाह के रसूल ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है, बच्चे को अपने गोद में ले लिए। उस बच्चे को अभी मां के दूध का जरूरत है। इतने में वो औरत जा रही है मैदान मक्तल के अंदर। अल्लाह के नबी कहते हैं बीबी रुक जा, जा ये बच्चा जब रोटी खाने के लायक होगा तब आना। बहरहाल वो औरत फिर बच्चे को लेकर जाती है, फिर आती है, जब बच्चा रोटी खाने के लायक हो जाता है तब आती है, कहती है अल्लाह के रसूल अभी मुझे पाक कर दीजिए। यहां तक कि सीने के बराबर गड्ढा खोदा गया और उस औरत को पत्थरों से मार मार कर संसार कर दिया जाता है। खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस औरत का जब सर फटता है, खून का फव्वारा निकलता है, तो कुछ खून के कतरे उनके दामन के ऊपर लग जाते हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद कुछ नाजायज जुमला कह देते हैं
2 या 3 दिन हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद से बात नहीं की। हजरत खालिद कहते हैं, अल्लाह के रसूल क्या बात है, आप मुझसे मैं सलाम कर रहा हूं, आप दिन ही में जवाब दे देते हैं। अल्लाह के रसूल, आप मुझसे बात नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या वजह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खालिद, उस दिन जो तुमने उस औरत को जानिया बच्चलन कहा था, कहा कि उसके खून के छींटे हमारे कपड़ा पे आ गए हैं और हमारा कपड़ा खराब कर दिया है। ए खालिद, वो औरत ऐसी सच्ची तौबा कर गई है कि अगर उसके तौबा अगर 70 गुनहगार के ऊपर डाल दिया जाए, मदीना के 70 गुनहगार औरत के ऊपर डाल दिया जाए, तो उसके तौबा के वजह से 70 गुनहगार जन्नत में चले जाएंगे बगैर हिसाब किताब के। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत का जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, कम से कम इस औरत का जनाजे की नमाज मत पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल कहते हैं, उमर, वो इस तरीके से तौबा करके मरी है कि अगर कोई चोर, अगर कोई डाकू, अगर कितना भी बड़ा कातिल अगर वो वैसी तौबा कर लेता, इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में ऐसी सच्ची वो तौबा कर गई है कि उतना बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े कातिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल कर दे। तो ये खसीत इलाही है। इस्लाम के अंदर अगर दाखिल इंसान हो रहा है तो पूरी तरीके से दाखिल हो। हदीस में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम लाए, हजरत उमर फारूक क्या कहते हैं कि अल्लाह 39वां मुसलमान है, 40वां मैं हूं। अल्लाह, जिस दिन इस अरब के धरती पे हम 400 मुसलमान हो जाएंगे, जिस दिन या तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को लहरा देंगे या तो हम अपने कब्रों में सो जाएंगे। तो ये कौन सी ताकत है? आज हम मुसलमान क्यों जलीलो खार रुस्वा हैं? 57 ममालिक होने के बाद फिर भी हम जूते खा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहदानियत को छोड़ दिया, तभी तो आज हम जलीलो खार हैं। नहीं तो 313 मुसलमान है, बदर के मैदान में 313 मुसलमान 1000 पर गालिब आए। किस लिए आए? उन्होंने अपने तौहीद को मजबूत किया। और सहाबा में ऐसे ऐसे सहाबा आए। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया आता है कि नबी का मेहमान आया, कहता है, अल्लाह के रसूल, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के घर भेजते हैं। घर से पता चलता है कि अल्लाह के नबी से कह दो कि सिर्फ घर में खजूर और पानी है, बाकी कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए? अबू तलहा अंसारी उठते हैं, कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं आपके मेहमान को मैं खाना खिला रहा हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं, ठीक है। और जब अबू तलहा अंसारी अपने उस मेहमान को लेकर पहुंचते हैं नबी के मेहमान को अपने घर में, तो अपने बीबी से क्या कहते हैं? ये बीबी, घर में कुछ खाने के लिए है? कहा, नहीं, बच्चों का इतना खाना रखा हुआ है। और ये अबू तलहा की बीबी उम्मे सुलेम, वो सुलेम है जिन्हें अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी बीबी नेक बीबी है। कि अबू तलहा अंसारी सफर में गए हैं, तिजारत के सिलसिले से गए हैं, उनके घर में बच्चा पैदा होता है, और जिस दिन अबू तलहा घर में आते हैं, अपने घर तशरीफ लाते हैं तिजारत करके, उसी दिन उनके बच्चे का इंतकाल हो जाता है। बहरहाल अबू तलहा जब घर में पहुंचते हैं तो अपने बीवी से कहते हैं, ये बीवी, बच्चा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? कहा कि सो रहा है। कहा, मेरे शोहर, आप खाना खाइए। खाना खाए, फ्रेश हुए, और कहा, उम्मे सुलेम कहती हैं कि ये मेरे शोहर, अगर कोई शख्स अगर मुझे अगर तोहबतन कोई नेमत दे या कोई चीज दे और कहे कि ये आप अपने पास रखो और मैं फिर इसे बाद में ले जाऊंगा, तो उसे देना चाहिए कि नहीं? अबू तलहा ने कहा कि हाँ बीवी, उसे दे देना चाहिए। कहा, खुशी खुशी देना चाहिए कि गमजदा होकर देना चाहिए? कहा, नहीं, खुशी खुशी दे देना चाहिए। उसकी माल था, उसका सामान था, वो अपना मांग रहा है, तो उसे देने में हर्ज क्या है? कहा, ये मेरे शोहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो औलाद के तौर पे हमें जो नेमत बख्शी थी, उसका इंतकाल हो गया, आप जाइए उसके कफन दफन का इंतजाम करिए। अबू तलहा कहते हैं कि मुझे इतना गुस्सा लगा अपने बीवी के ऊपर,
मैं दौड़कर अल्लाह के नबी के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है, आज मेरे साथ ऐसा ऐसा घर में वाकया पेश आया और मेरी बीवी ने मुझे कुछ नहीं बताया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू तलहा, तुम्हारी बीवी नेक औरत है कि जो अपने शौहर के हुकूक को वो समझ रही थी। तो अबू तलहा के घर पे जब पहुंचता है वो मेहमान, अबू तलहा अपने बीवी से कहते हैं, उम्मे सुलैम से, कि बीवी कुछ घर में खाने के लिए है? कहा कि बच्चों का थोड़ा खाना रखा हुआ है। कहा कि ठीक है, वो अपने मेहमान को दे दो। और मेहमान भी ऐसा कि वो शर्त लगा रहा है कि अबू तलहा, अगर तुम मेरे साथ खाना खाओगे तो ही मैं खाना खाऊंगा। अबू तलहा बेचारे तो वो परेशान हो गए कि घर में सिर्फ बच्चों का खाना रखा है और मेरा मेहमान शर्त लगा रहा है कि आपको भी खाना है, अब मैं क्या करूं? कहा कि ठीक है। कहा अपने बीवी के पास गए और कहते हैं, बीवी जब तुम खाना लाना तो तुम किसी भी बहाने चिराग को बंद कर देना, चिराग को बुझा देना। कहा कि ठीक है। अब जब खाना लेकर उनकी बीवी पहुंचती है मेहमान के सामने तो किसी बहाने चिराग को बुझा देती है और अबू तलहा के सामने खाली प्लेट है और उस मेहमान के सामने प्लेट में खाना रखा हुआ है। खाना खा रहे हैं और अबू तलहा जो है खाली प्लेट हाथ बर्तन में डालते हैं और मुंह तकलाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं हाथ, फिर हाथ को नीचे लेकर जाते हैं बर्तन के जानिब और फिर हाथ जो है मुंह तकलाते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं। बहरहाल जब मेहमान उनका खाना खाकर रुखसत हुआ, फजर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में पहुंचते हैं। मस्जिद नबी में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तलहा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अबू तलहा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, क्या बात है कि आप मेरे जानिब देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बात क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू तलहा, जो तुमने अपने घर में जो वाकया किया कि खाली मुंह अपने प्लेट तक लाते थे, अपने मुंह पर लाते थे खाली प्लेट से, तेरे इस अदा को देखकर आसमान पे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्कुरा रहा था और उसके मलाइका भी मुस्कुरा रहे थे। तो जिस शख्स से, जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्कुरा रहा है तो मोहम्मद कौन होता है उस शख्स से ना मुस्कुराए ना हंसे। तो ये सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने इस्लाम के अंदर किस कदर कुर्बानी दी और किस कदर इस्लाम के अंदर उन्होंने अपने दिलों और जान को भी कुर्बान किया। यही अबू उबैदा बिन जर्राह है कि जंगे बदर लड़ रहे हैं, एक शख्स उनके तलवार के नीचे 10 मरतबा उनके तलवार के नीचे आता है लेकिन बचा देते हैं, फिर उनके करीब आता है, उन्हीं के तलवार के नीचे फिर एक शख्स आता है बार बार। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने तलवार को उठाते हैं और उस इंसान के खोपड़ी के 2 हिस्से कर देते हैं। वो कौन था? वो अबू उबैदा बिन जर्राह का सगे वालिद था, सगे बाप था, जो कुफार की तरफ से जंग लड़ने के लिए आया था। तो उन्होंने इस्लाम के आगे अपने बाप को भी नहीं समझा। आज हम मुसलमान किस कदर सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं। हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी सुमामा का वाकया आता है कि सुमामा जो यमामा का गवर्नर था, वो मस्जिद नबी में पकड़ कर लाया जाता है, मस्जिद नबी के सुतून में बांध दिया जाता है उसे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुमामा का मुंह लटका हुआ है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, साहबा तुमने इसे कोई तकलीफ दी है कि नहीं दी है? कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके इजाजत के बगैर हम क्यों इसे तकलीफ देंगे? बहरहाल सुमामा बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी कहते हैं, सुमामा क्या हाल है? कहा, ए मोहम्मद, तुम मुझे पकड़कर बांध दिए मस्जिद नबी के सुतून में, मेरे हाल और चाल को पूछ रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि सुमामा, तू एक नजर मेरे बस्ती मदीना को देख ले। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद मोहम्मद कर कर ले रहा है। कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि वो भी काफिर है। कहा, ए मोहम्मद, नहीं देखता तेरे बस्ती को, मैंने ईरान देखा, मैंने रूम देखा, तेरे मदीना जैसे गंदी नऊजुबिल्लाह बस्ती हमने देखा ही नहीं। यहां तक कि हदीस पाक में आता कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
का हाथ अपने तलवार के जानिब कपा रहा था, कांप रहा था कि नबी अकरम हुक्म दे तो इसकी गर्दन काट कर नबी के कदमों में रख दिया जाए। कहा कि नहीं देखता तेरे बस्ती मदीना को। अल्लाह के नबी कहते हैं सुमामा एक काम कर, तू मुझे देख ले एक मर्तबा। उसने नौजुबिल्लाह कहा कि हे मोहम्मद, मैंने बहुत सारे बादशाहों को देखा, लेकिन नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह तुझसे ज्यादा बदसूरत मैंने देखा ही नहीं है किसी को। हदीस में आता है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहां तक कि उसके अल्फाज सुनकर तो जिब्रील गज़ब गज़ब में आ गए होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ठीक है मत देख, छोड़ दो इसे। बहरहाल छोड़ दिया गया और कहा कि एक काम करो, दो सहाबा को भेजे और कहा जाओ इसे मदीना के बॉर्डर तक छोड़ कर आओ। बहरहाल दोनों सहाबा जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई सुमामा देख, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म देते तो तेरी गर्दन काट कर यहां तक कि हम तेरा कीमा कीमा कर डालते, अगर मेरे नबी हुक्म दे दिए होते। तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कितना नाजेबा जुमला कहा है। फिर रास्ते भर चल रहा है, सोच रहा है कि जिस नबी को हमने इतना बुरा कहा वो नबी मुझे छोड़ दिए, आखिर वजह क्या है। बहरहाल हदीस में आता है कि सुमामा जिस रास्ते से गया था दौड़ कर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहता है अल्लाह के रसूल अपना बनाकर मुझे छोड़ दिए। अल्लाह के रसूल मैं भी उसी कलमे तौहीद का इकरार करता हूं और इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये सहाबा इकराम ने या तबे ताबईन ने किसके तरफ अपने आप को पेश किए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को देखिए कि बगदाद से एक बुढ़िया चलकर उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास जाती है। ये तो सहाबा थे, तबा ताबईन का वाकया सुना रहा हूं कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए एक बुढ़िया बगदाद से चलकर जाती है और कहती है कि भाई अमीरुल मोमिनीन का घर कहां है। कहा कि वहां है अमीरुल मोमिनीन का घर, वही बताया गया कि फला जगह पे है। जब वो बुढ़िया पहुंचती है उमर इब्ने अब्दुल अजीज के घर पे, तो वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज हैं कि जो बादशाह हैं, जिनकी उनकी बीवी फातिमा कि उनके नस्लें दर नस्लें बादशाह थे, उनके भाई बादशाह थे, उनके बाप बादशाह थे, उनके दादा बादशाह थे। लेकिन जब पहुंचती है तो देखती है कि मिट्टी से उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने घर को लीप रहे हैं और अपने दीवार को दुरुस्त कर रहे हैं। तो बुढ़िया बैठी है, फातिमा से कहती है फातिमा क्या बात है, तुम एक नजर तुम उस मिस्त्री को देखती हो और मुस्कुराती हो, हया वया का कुछ शर्म वरम है कि नहीं है। कहा है मेरी मां तुम्हें मालूम है वो कौन है। कहा कौन है। कहा वही तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह है। जब बुढ़िया उमर इब्ने अब्दुल अजीज को सुनती है, देखती है, तो जारो कतार रोने लगती है। कहती है बादशाह होकर, खलीफा होकर अपने घर को लीप रहा है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज पास में आते हैं, कहते हैं मां क्या बात है। कहा ये मेरे बेटे मुझे बैतुल माल से वजीफा चाहिए, मेरे 4 बच्ची हैं, उनका गुजर बसर के लिए मुझे बैतुल माल से वजीफा चाहिए। कहा कि ठीक है बैठो। बैठाया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, बगदाद के बादशाह को खत लिख रहे हैं, गवर्नर को खत लिख रहे हैं। कहते हैं कि फला पहली बेटी को इतना गल्ला इतना राशन मिलना चाहिए बैतुल माल से। वो औरत कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर दूसरा लेटर जब दूसरा खुतूत लिखते हैं तो कहते हैं दूसरी बेटी को इतना राशन इतना गल्ला मिलना चाहिए। वो औरत कहती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर कहते हैं कि तीसरी बेटी को इतना राशन इतना गल्ला मिलना चाहिए। वो बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर जब चौथी का रोका लिखने लगे तो कहते हैं चौथी बेटी को इतना राशन इतना गल्ला मिलना चाहिए। वो औरत कहती है अमीरुल मोमिनीन आप तो बहुत सखी हैं, अमीरुल मोमिनीन आप बहुत रहमदिल इंसान हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कलम और कापी को रख देते हैं। बुढ़िया कहती है मेरे बेटे अभी तुम चौथी बेटी का रुका तैयार कर रहे थे, कलम और कागज को रख क्यों दिए। कहा मेरी मां जब तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान कर रही थी तो मैं तुझे दे रहा था
اور جب تم عمر ابن عبد العزیز کی تعریف بیان کرنے لگی تو میں نے قلم اور کاغذ کو اٹھا کر رکھ دیا. میرے پاس نہیں ہے مال و زر اتنا. دیکھ لے ماں میں تو ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہ رہا ہوں, میرے پاس نہیں ہے کہ میں تجھے دے دوں. جا تو اتنے میں تیسری بیٹی کے راشن اور گلے میں تو چوتھی کی بھی پرورش کر, تجھے نہیں ملے گا. وہی عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ لوگوں کے بچے عید کے دن نیا کپڑا پہنے ہیں, نیا لباس پہنے ہوئے ہیں. عمر ابن عبد العزیز کی بیٹی کہتی ابا ایک کام کرو, آپ بھی جاؤ بیت المال کے کیشیئر سے کہو کہ ہمیں 1 مہینہ ایڈوانس, 1 مہینہ آگے کا پگار دے دے. بہرحال عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں, کہتے بیت المال کے کیشیئر سے کہتے ہیں میرے بھائی مجھے 1 مہینہ ایڈوانس پگار دے دے, 1 مہینہ ایڈوانس تنخواہ دے دو. کہا امیر المومنین ٹھیک ہے لے لو, لیکن امیر المومنین آپ کیا لکھ کر دے سکتے ہیں کہ آئندہ مہینے تک آپ زندہ رہو گے؟ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بیت المال کے کیشیئر کے زبان سے میں نے یہ الفاظ سنا تو میں ہل گیا, کانپ گیا, اور اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی تم پرانی دھرانی چیزوں میں عید کا گزر بسر کر لو, آج بیت المال کے کیشیئر نے تیرے باپ کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے اور مجھے اپنے آخرت کو یاد آ گئی. اے میری بیٹی میں ابھی نہیں مانگ سکتا ہوں اس سے پیسہ. یہ عمر ابن عبد العزیز تھے کہ جنہیں دنیا 5واں خلیفہ کہتی ہے, اور کیوں نہ ہو کیونکہ یہ کس کے نسل سے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہے. وہ جب حضرت عمر فاروق ہیں کہ جو ایران اور روم کو فتح کیے تو لوگ آئے کہتے ہیں امیر المومنین ماشاء اللہ تبارک اللہ آج ایران فتح ہو گئی. حضرت عمر فاروق تو لوگ اور بھی بیٹھے تھے, حضرت عمر فاروق کے نام پہ قصیدے پڑھ رہے ہیں, کہتے ہیں ہمارے امیر المومنین اتنا بہادر ہے, ہمارے امیر المومنین اتنے سخی ہیں, ہمارے امیر المومنین اتنا جرأت رکھتے ہیں کہ روم اور ایران کو ہلا کر رکھ دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نام پہ تعریفیں سننے لگے فوراً منبر پر چڑھ جاتے, کہتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اے لوگوں سن لو, میں وہی عمر تھا کہ جسے اونٹ چلانا نہیں آتا تھا, میں وہی عمر تھا کہ جو میرا باپ کہتا تھا اے عمر تو سب سے نکمی اولاد ہے میری, اور اے عمر تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ سب الحمدللہ رب العالمین, یہ ساری چیز اللہ رب العالمین کی تعریف کرو, میری مت کرو تعریف, کیونکہ عمر اس لائق نہیں تھا. آج اللہ رب العالمین نے اس لائق بنا دیا ہے مجھے, تو تم صرف اللہ رب العالمین کی تعریف کرو. وہی عقبہ ابن نافع ہے کہ اپنے 10,000 فوج کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, سامنے سمندر آ جاتا ہے اور سمندر کے پانی سے وضو بناتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے دائیں بھی اسلام ہے, بائیں بھی اسلام ہے, اے اللہ میرے پیچھے بھی اسلام ہے, اے اللہ سامنے سمندر ہے میں کیا کروں, اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے اس سمندر کے پار تو کوئی بستی تیری رہ رہی ہے تو اے اللہ ہم اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں سمندر میں اور اس وقت رکنے کا نام نہ لوں جب تک اس جگہ پہ, اس دھرتی پہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو لہرا نہ دے, تب تک اے اللہ ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے. یہ صحابہ اکرام اگر پوری طریقے سے اسلام کے اندر کوئی داخل ہوئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے واقعے کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم جمی مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں, روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کے اوپر رحم فرما. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جو عورت باز ہے اے اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. بارک